معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام گلوبل افیئر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جنوبی ایشیا کے اس خطے کو سب سے زیادہ عدم استحکام بھارت نے کیا ہے، اور 5 اگست سن 2019 سے اس پورے علاقے میں نقشوں کی ریس شروع کر دی ہے، اور اب پاکستان نے بھی اپنا نیا پولیٹیکل میپ جاری کر دیا ہے۔ شملہ معاہدے کے بعد پاکستان نے پہلی مرتبہ اپنا یہ نقشہ جاری کیا ہے، اور پاکستان نے اس میں پورا جموں کشمیر، کارگل، سیاچن گلیشیئر اور لداخ کے کراکرم رینج تک کے علاقے کو کلیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین گجرات کا جوناگڑھ اور مناوادر کا علاقہ شامل کیا ہے۔ اس کے بعد بھارت میں مکمل طور پہ کھلبلی مچ گئی ہے، اور اس کا اثر آپ بھارت کی میڈیا چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ نیا نقشہ جاری کیا ہے۔ اس میں بہت کلیئر ہے کہ پہلے پاکستان ریڈ لائن سے ویسٹ والے علاقے کو کلیم کرتا تھا، اور یہ جو باقی کا علاقہ ہے اسے متنازع علاقہ یا ڈسپیوٹڈ ایریا کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ گجرات کا بہت بڑا علاقہ سرکریک کے علاوہ جوناگڑھ اور مناوادر کو اسٹرانگلی کلیم کیا گیا ہے اس نئے نقشے میں۔ اس سے کشمیر پر پاکستان کی پوزیشن مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم 5 اگست 2019 کے بعد کے تاریخ سے دیکھتے ہیں، جب بھارت نے جو نقشہ جاری کیا تھا اس نے اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر اور لداخ کے علاوہ چین کے اکسائی چن اور پاکستان کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور نیپال کے کالا پانی کے علاقے کو بھی اپنے نقشے میں شامل کیا تھا۔ یہ بھارت کی اتنی بڑی بے وقوفی اور غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی جس نے سوئے ہوئے چین کو جگا دیا، اور آج چین نے بھارت کے اس نقشے کو جواز بناتے ہوئے بھارت پر حملہ کر کے اکسائی چن کے علاوہ گلوان ویلی، پینگونگ سو لیک کے تمام فنگر پوائنٹ جو کہ تقریباً 8 پوائنٹس ہیں، ان تمام پر گوگرا پوسٹ کا علاقہ، ڈیپسونگ کے وائی شیپ بوٹل نیک کا ایریا، چومور، ڈیم چوک، شیوک ریور اور سب سے اہم دولت بیگ اولڈی روڈ کے قریب تقریباً 100 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور اس کے علاوہ اروناچل پردیش اور ہماچل کے علاقے میں بھی چین کی پیش قدمی جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نیپال نے بھی 200 سالہ پرانا تنازع کو جواز بنا کر بھارت کے اتراکھنڈ کے کالا پانی کے علاقے لیپولیک پاس اور لمپیا ادھورا کو اپنے نقشے میں شامل کر دیا، اور اس نقشے کو اپنے پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر منظور کروا کر تمام سرکاری، دفتری اور بچوں کی درسی کتابوں میں شامل کروایا۔ نیپال نے اس مقصد کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے۔ سب سے پہلے اس نقشے کو اپنی پارلیمنٹ سے منظور کروا کر گوگل کو بھجوا دیا تاکہ سرچ انجن میں نیپال کے اس نقشے کو دکھایا جائے، اور اسی کے ساتھ ہی اس نے کالا پانی کے علاقے کو 200 سال کے تمام شواہدات کو جمع کر کے یونائٹڈ نیشن میں بھجوا دیا، اور اسے ایک عالمی متنازع علاقہ قرار دلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد نیپال نے بھارت کے ساتھ 1950 سے اوپن بارڈر ٹریٹی بھی ختم کر دیا، جس کے بعد اب نیپال اور بھارتی عوام کو ایک دوسرے کے ملک میں جانے کے لیے ویزا یا پرمٹ لینا پڑے گا۔ نیپال نے اپنے ملک میں ہندی زبان پر پابندی لگا دی، اور بھارت کے تمام پرائیویٹ اور سرکاری میڈیا چینل کی نشریات کو اپنے ملک میں بند کر دیا۔ اس کے بعد نیپال نے اس کالا پانی کے متنازع علاقے میں اپنی فوجی دستوں کے ساتھ ساتھ چین کے 1000 فوج کو بھی تعینات کرا دیا، اور اب چین کے 1 برگیڈ فوج اس کالا پانی کے علاقے میں پہنچنے جا رہی ہے۔ اس علاقے کی اہمیت کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے اپنے پہلے والی ویڈیو، جس میں نیپال اور بھارت کے تعلقات کے دوسری سیریز میں ڈیٹیل سے بتایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب نیپال کے بعد پاکستان نے بھی نیا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ 4 اگست 2020 کو پاکستان نے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ پاکستان نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے، جسے اس نے اپنے کیبنٹ سے منظور کروا کے یونائٹڈ نیشن اور دنیا کی سب سے بڑی سرچ انجن گوگل اور اس کے ساتھ ہی تمام سرچ انجنوں میں اور اپنی ویب سائٹ اور تمام ایمبیسی میں اپنے یہ نقشے استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، تو 5 اگست سن 2020 کو انڈیا اپنی پہلی اینیورسری کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، جب اس نے آرٹیکل 370 اور
आर्टिकल 35A को कश्मीर से उठाया था, जो कि इसने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को एब्रोगेट करके हटाया था। और पाकिस्तान ने तकरीबन एक दिन पहले अपना नया नक्शा रिलीज़ किया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने ये सबसे बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई, मगर इसका कोई रिज़ल्ट न आया। इंडिया के इस आर्टिकल को ख़त्म करने और नया नक्शा जारी करने पर चीन और नेपाल ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई थी, और अब चीन और नेपाल के अमली इक़दामात के बाद पाकिस्तान ने भी ये कदम उठाया है। इस मरतबा पाकिस्तान ने इस मुतनाज़ा इलाके की टर्मिनोलॉजी ही तब्दील कर दी। और आपने पहले पाकिस्तान की बहुत सी स्टेटमेंट ये सुना होगा कि पहले पाकिस्तान इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर यानी IOK कहता था, और अब पाकिस्तान ने इस इंडिया के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर के इलाके को इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर यानी IIOJK कहेगा। और दुनिया में हर जगह यानी यूनाइटेड नेशन में अब ये इलीगली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पहले यूँ नहीं किया जाता था। ये आपके सामने दो नक्शे हैं। ये है पाकिस्तान का पुराना नक्शा और ये है नया नक्शा, जो कि अब पाकिस्तान ने रिवील किया है। पुराने नक्शे में पाकिस्तान ने ये डॉटेड लाइन दिखाई है। पाकिस्तान के पास जो अब कश्मीर है, इसके नक्शे में डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और बाकी इलाके को डिस्प्यूटेड एरिया कहा गया था। पाकिस्तान ने इससे पहले आज तक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को अलग इलाका दिखाया था। इसे पाकिस्तान के साथ तो दिखाया जाता था कि इन इलाकों का इंतज़ाम पाकिस्तान करता है, मगर इन इलाकों को अपने नक्शे में नहीं दिखाता था। अब पाकिस्तान ने इन तमाम इलाके को मुकम्मल तौर से अपने नक्शे में दिखाया है, और अब इस नए नक्शे में देखें तो पाकिस्तान ने तमाम इलाके को अपने पॉलिटिकल मैप में दिखाया है, यानी कराक्रम रेंज तक, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर और इसी तरह से कारगिल और लद्दाख के कराक्रम रेंज तक के इलाके को अपने नक्शे में दिखाया है। और सिर्फ अक्साई चिन के इलाके को, जो कि चीन के साथ मिलता है, इसे ओपन रखा है, जो बाद में पाकिस्तान और चीन तय कर सकते हैं। पाकिस्तान पहले सियाचिन ग्लेशियर को अपने नक्शे में नहीं दिखाता था, अब इस सियाचिन ग्लेशियर को भी अपने नक्शे में वाज़ेह तौर पर दिखाया है। पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर के मामले में बहुत एहतियात से काम लेता चला गया है, और यहाँ तक के अवाम के साथ अपना साथ देता चला आया है। मगर हिंदुस्तान ने हमेशा इसकी दोस्ती के बढ़ाए हुए हाथ को इसकी कमज़ोरी समझा, जबकि पाकिस्तान ने दोस्ती के लिए सबसे पहले करतारपुर बॉर्डर को खोला ताकि फ्रेंडशिप के माहौल को पैदा किया जा सके। इसके बावजूद हिंदुस्तान ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म करके और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को अपने इलाके में दिखाकर इस इलाके को दुनिया का मुतनाज़ा तरीन खित्ता बना दिया है। अब पाकिस्तान ने हार्ड इक़दामात लिए हैं। पाकिस्तान के इस पुराने और नए नक्शों के बहुत ख़ास बातें हैं जो इंडिया के लिए परेशानी का सबब हैं, जो कि हम आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अभी ये साफ़ कह दिया है कि हमारा आज से जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो श्रीनगर को पाकिस्तान में शामिल करना है, और हमारे आबाओ अजदाद ने जो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का ख्वाब देखा था, हमने उसे हर कीमत में पूरा करना है। पाकिस्तान में तारीख़ में पहली मर्तबा इतना बोल्ड स्टेप कश्मीर के ऊपर उठाया है। पहले पाकिस्तान ये सिर्फ कहता था कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और अब पाकिस्तान इस पूरे कश्मीर को अपने इलाके में दिखा रहा है, और अब पाकिस्तान इस पूरे कश्मीर को अपने इलाके में शामिल करने के लिए चाहे उसके लिए फ़ौजी ताकत का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, वो अब करेगा। और अब हिंदुस्तान की नींदें हराम हो गई हैं। जब से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के गुजरात पर अपना क्लेम दोहराया है, इसे अपने नक्शे में दिखाया है, और हिंदुस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया है, और तमाम सियासी जमातें और तमाम फ़ौजी क़यादत सर जोड़कर बैठ गए हैं कि ये पाकिस्तान ने किस तरह से ये चाल चली है कि गुजरात के जूनागढ़ के इलाके को अपने इलाके में दिखाया है। इस दफ़ा हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात गुजरात के इलाके जूनागढ़ की हुई है, और अब पाकिस्तान ने जूनागढ़ की शक्ल में एक नया फ्रंट खोल दिया है। जबकि जूनागढ़ का जो इशू है ये काफ़ी पुराना है। पाकिस्तान ने जूनागढ़ के इस तनाज़े को कभी
प्रॉपर फॉरम पर नहीं उठाया, लेकिन तारीखी तौर पर हमेशा लफ्ज़ों में इसकी बात करते रहे हैं। जबकि पाकिस्तान ने अब पॉलिटिकल मैप जारी किया है जिसमें जूनागढ़ के इस इलाके को अपने इलाके में दिखाया है। हिंदुस्तान की परेशानी का सबब एक और बात यह बनी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के डिस्प्यूटेड लिस्ट के अंदर सर क्रीक का इलाका, जम्मू एंड कश्मीर और सियाचिन के इलाके शामिल हैं, लेकिन जूनागढ़ का इलाका नहीं रहा है। लेकिन अब हिंदुस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो गई है कि इस इलाके को किस तरह से पाकिस्तान ने अपने इलाके में दिखा दिया है। इस वक्त जूनागढ़ स्टेट के बारे में हम आपको ये बताते चले कि इसकी मौजूदा आबादी तकरीबन 27,40,000 के करीब है। रिलीजन के हिसाब से 82% हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग हैं और 17% के करीब मुस्लिम आबादी है, और बाकी 1% में बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन और सिख और दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। पाकिस्तान ने इस दफ़ा ये कोशिश की है कि इसकी तारीख को जो पुराना चैप्टर है इसे दोहराया जाए और दोबारा से इसको खोला जाए। पाकिस्तान यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसे हम ज़रा समझते हैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था जो कि ब्रिटिश इंडियन रूल के अंदर में आता था। यहाँ हिंदू मज़हब के मानने वालों की मेजॉरिटी थी, जिसमें ज़्यादातर हिंदू आबाद थे, मगर इसका राजा एक मुस्लिम राजा था और इसका नाम था सर मोहम्मद महाबत खान स्वयं। ये रूलर पाकिस्तान की फेवर करते थे और ये चाहते थे कि इस जूनागढ़ स्टेट का पाकिस्तान से इल्हाक हो जाए। पाकिस्तान की सियासत की अहम शख्सियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद शाहनवाज़ भुट्टो का काफ़ी इस मामले में रोल रहा है और इन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने की काफ़ी कोशिश की। ये वहाँ एज अ दीवान ऑफ जूनागढ़ अपॉइंटेड थे और जूनागढ़ के जो रूलर या हुक्मरान थे उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। पाकिस्तान से जो उनकी डिमांड थी वो तकरीबन पूरी हो चुकी थी और ये जूनागढ़ स्टेट तकरीबन पाकिस्तान से मिलने के बहुत करीब था, और दरमियान में सरदार पटेल आ गए और इन्होंने ये कहा कि इस रियासत के अलहाक का फ़ैसला हुक्मरान नहीं लेंगे बल्कि अवाम लेंगी, यानी वोटिंग होगी। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी सरदार पटेल की बात को सपोर्ट किया और ये कहा कि जूनागढ़ इंडिया का पार्ट है और हम यहाँ पर प्लेबिसाइट करने के लिए तैयार हैं, और ताकत के ज़ोर पर जूनागढ़ के नवाब से एक्सेशन ऑफ जूनागढ़ को तब्दील कराया गया। जूनागढ़ में प्लेबिसाइट से पहले पूरे जूनागढ़ का बाइकाट करके इंडिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर इसे ब्लॉक करने के बाद यहाँ फौजकुशी की गई और यहाँ तक के जो इस जूनागढ़ के नवाब थे वो जान बचाकर पाकिस्तान आ गए, और इस तरह से एक जाली वोटिंग करवाई गई और जाली वोट के नतीजे में सिर्फ पाकिस्तान के हक़ में 130 वोट आए और हिंदुस्तान के हक़ में 2,22,000, जबकि उस वक्त जूनागढ़ की कुल आबादी 7,20,000 के करीब थी। और इस तरह जूनागढ़ को ज़बरदस्ती हिंदुस्तान ने अपने साथ मिला लिया। पाकिस्तान जूनागढ़ के साथ ज़मीनी फासले और ब्लॉकेड होने की वजह से, यानी ज़मीनी फासला बहुत ज़्यादा था और ब्लॉकेड होने की वजह से कुछ ज़्यादा न कर सका, और जनवरी 1948 यानी 1948 में पाकिस्तान जूनागढ़ के इस केस को सिक्योरिटी काउंसिल में लेके चला गया। वहाँ ये बात उठाई गई कि जूनागढ़ के जो रूलर हैं इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन कर दिया है, तो अब इंडिया इसको ओवर रूल कैसे कर सकता है। मगर ये इशू यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉपर डिस्कस नहीं हुआ और इस तरह पाकिस्तान का पूरा फोकस कश्मीर पर चला गया। इस तरह ये इशू दब गया और पाकिस्तान अब ये कोशिश करेगा कि इस पुराने केस को रिवाइव करे और आने वाले वक्त में चाइना के ज़रिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दोबारा उठाया जाए और कश्मीर के हल के लिए निगोशिएशन के तौर पर भी इस केस को सामने रखा जाए। पाकिस्तान और चीन ने ये ज़बरदस्त काम किया है और इसको एक जवाब बनाया जा रहा है कि जिस तरह अक्सरियत की बुनियाद पर जूनागढ़ इंडिया के साथ मिलाप हुआ था, उसी तरह से कश्मीर के अक्सरियत के कहने की बुनियाद पर यह पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। अब अगली बारी भूटान की है और भूटान भी जल्द अपने नए नक्शे जारी करने वाला है, जबकि भूटान में चुम्बी वैली का इलाका यानी ट्राई जंक्शन एरिया जिसे कहा जाता है, जिसके एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है और एक तरफ भूटान खुद है, और उसके बिल्कुल करीब से सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है वो सबसे अहम एरिया है। और
بھوٹان بہت جلد یہ نقشے بھی جاری کرنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد آخر میں چین نے اپنا ذاتی نقشہ جاری کرنا ہے، جس میں چین ہندوستان کے بہت بڑے علاقے کو لینے جا رہا ہے، جس میں 90,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ اروناچل پردیش جو کہ ایسٹرن سیکٹر میں ہے یہ اپنے نقشے میں دکھانے جا رہا ہے۔ دوسرا 2,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو کہ ہماچل پردیش جو کہ مڈل سیکٹر میں ہے اسے اپنے نقشے میں دکھائے گا، اور اسی طرح سے تقریباً 33,000 کلومیٹر کا علاقہ جو کہ لداخ میں ہے، یہ ایریا تقریباً 5 سوئٹزرلینڈ ملک کے برابر کا بنتا ہے۔ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے جو کہ چین اپنے نقشے میں دکھانے جا رہا ہے۔ یہ موو چائنا نے سب سے پہلے نیپال کے ذریعے شروع کروائی، جس میں نیپال نے تقریباً 400 کلومیٹر کے علاقے کو اپنے نقشے میں شامل کیا ہے، اور اب پاکستان نے پچھلے جتنے بھی علاقے تھے وہ تمام پاکستان نے اپنے نئے نقشے میں شامل کر دیے ہیں، اور اس طرح اب اس خطے میں کسی وقت بھی کسی بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جبکہ ایک بے وقوف مودی ایودھیا میں جشن منا رہا ہے۔ کراچی کے مشہور شاعر جان ایلیا نے کیا خوب کہا تھا، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سبق کو حادثہ ضروری ہے۔ ہماری یہ کوشش صرف اپنے ویورز کو آسان انداز میں معلومات دینے کے لیے ہے۔ اگر ہماری یہ معلوماتی کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور اپنے مفید کمنٹ ضرور دیجیے، اور اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔